Guys, welcome back to my channel. So today, as I said in my last video, we will be doing some numericals. So today we will start with some composite slab numericals. So first we will note down all the formulas that will be necessary for solving the composite slab sums. So the first formula is Q is equal to T1 minus T2 upon L A upon K LA upon KA into A. If there is a slab, this is T1, this is T1, this is T2, and the length is LA, and if the thermal conductivity is Ka and area is A. So, and if we have to find T1 minus T3, like heat transferred from T1 to T3, then T1 minus T3 upon LA upon Ka into A plus Kb upon Lb upon Kb into A. Since area is same, so it will get cancelled. See, if whenever area is not given, it means we have to find Q dot, which is equal to Q by A. So this is the basic concept of applying the formula. So we will use this in our first sum. So in first sum, what you can see, a reactor's wall 320 mm thick is made up of inner layer of fire brick, which is having thermal conductivity of 0.84 watt per meter degree Celsius. This is its thermal conductivity is 0.84, and this is having thermal conductivity of 0.16. We have to determine T. T here is not temperature, it is thickness. I have not mentioned it. Thickness means we have to find LA and LB, because whole length is given, which is 320 mm. Convert it into meters. 320 into 10 raised to minus 3 meter. So 0.32 meter. And calculate heat loss presuming insulated material has maximum temperature is equal to 1200 degrees Celsius. This is maximum temperature. So how we will start? First, note down all the given things. T1 is equal to 1325 degrees Celsius. T2 is equal to T max is equal to 1200 degrees Celsius. T3 is equal to 25 degrees Celsius. L is equal to LA plus LB is equal to 0.32 meter. K, what is K? A, 0.84, and KB is equal to 0.16. This is Ka, this is KB. So let's continue with the further things. So what we have to do, the next thing is that since the heat flux is under steady state condition and area is same, so as I told you, area will not be included. So Q dot is equal to Q by A is equal to what we have to find. See, this temperature is T1, this is T2, T3. So we can write LB in terms of LA and LA in terms of LB in whatever way we can write to find the value of the thickness, and we have to substitute in the equation which I taught you. So we have to apply the same concept. So now we have to apply the same concept. So what we have to apply? See, T1 minus T3, T1 minus T3 upon LA upon KA plus LB upon KB is equal to T1 minus T2 upon LA upon KA is equal to T2 minus T3 upon LB upon KV. कुछ नहीं किया है, सिर्फ डिवाइड किया है इसको अलग अलग, मतलब T1 माइनस T2 अपॉन ये, T2 माइनस T3 अपॉन ये, T1 माइनस T2 अपॉन ये, T2 माइनस T3 अपॉन ये.
और उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या करना है, T1, सो T1 क्या है, T1 है 1325, T1 है 1325, ये देखो, माइनस T2 है 20, माइनस T3 है 25 अपॉन LA क्या है, LA नहीं पता, अपॉन KA 0.84 प्लस LB अपॉन 0.16 हो गया, इज इक्वल टू कोई भी इक्वेशन से आप इक्वेट कर सकते हैं। सो मैं पहला इक्वेशन लेता हूँ। सो 1325 माइनस 1200 अपॉन LA अपॉन 0.84, ये हो गया। अब ये तो दूसरे क्वेश्चन पे, तो हम यहाँ पर ही सॉल्व करते हैं। सो कहाँ तक हुआ, यहाँ तक। सो अब क्या करेंगे, हम LB को LA के टर्म्स में लिखेंगे ये इक्वेशन से। LB इज इक्वल टू 0.32 माइनस LA। सो 1325 माइनस 25 इज 1300 अपॉन LA अपॉन 0.84, आप डिवाइड करके देखो 1.190 LA प्लस LB को LA के टर्म्स में, और 1/0.16 इज 0.32 नहीं 6.25 0.32 माइनस LA इज इक्वल टू 1325 माइनस 1200 105 अपॉन LA। सो ये सब सॉल्व करने के बाद आपको LA का वैल्यू मिलेगा 0.1146 मीटर, और LB इज इक्वल टू 0.32 माइनस LA। सो ये सब्सटीट्यूट करो तो आपको मिलेगा 205.4 mm या 0.2054 मीटर। सो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, कैलकुलेट हीट लॉस। तो हीट लॉस कैसे ढूंढेंगे, देखो हीट लॉस कैसे ढूंढने का, LA मिल गया, LB मिल गया। सो हीट लॉस कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो, ये इक्वेशन में या इक्वेशन में हीट लॉस मिल जाएगा। तो कोई भी एक इक्वेशन में Q इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन LA बाई KA। सो LA पता है, सो T1 पता है, T1 क्या है 1325, T2 पता है 1200, LA पता है, LA क्या था 0.1146, और KA पता है, KA क्या था 0.84, एंड देन सब्सटीट्यूट टू गेट द फाइनल आंसर। सो ये हो गया, दिस इज़ फर्स्ट न्यूमेरिकल। सो ये एक बार सॉल्व कर देते हैं। सो क्या था 1325 माइनस 1200 अपॉन 0.1146 इंटू 0.84, 916.23 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन। A furnace wall consists of 200 mm layer of refractory brick, 6 mm layer of steel plate and a 100 mm layer of insulation brick. So the maximum temperature of wall is 1150 on furnace inside and minimum temperature is 40 degrees Celsius on outermost side of wall. Accurate energy balance over the furnace shows heat loss. Heat loss is already given, that is Q by A is equal to Q dot equal to 400. And thermal conductivities are given for the respective slabs. We have to find the air gap thickness and the temperature of outer surface of steel plate. So what to do? First of all, we have to know what is the diagram. एक बार composite slab का diagram बना लिया तो अपने आप सम सॉल्व हो जाएगा। This was asked in 1996 in some competitive exam. सो मतलब इतना तो हमें पता चल गया कि
कितने थर्मल कंडक्टिविटी है देखो, एक एयर गैप है और 3 थर्मल कंडक्टिविटी है, मतलब टोटल 4 स्लैब आएगा, टोटल 4 स्लैब। सो पहला स्लैब, दूसरा एयर गैप, तीसरा स्लैब। उसके बाद ये टेम्परेचर है 1150 डिग्री सेल्सियस, बोला है ना मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वॉल इज़ 1150, और एंड मिनिमम टेम्परेचर इज़ 40 डिग्री 40। और ये LA इक्वल टू 200 mm, LA इक्वल टू 200, 6 mm लेयर ऑफ स्टील प्लेट, ये 6 mm, और ये 100 mm लेयर ऑफ इंसुलेशन ब्रिक। अब आप बोलोगे कि मेरे को कैसे पता चला, इधर नहीं है 6 mm, इधर ही है, यहाँ पर दिया है कंडीशन, इट इज़ नोन दैट, यहाँ पर दिया इट इज़ नोन दैट देयर इज़ अ थिन लेयर ऑफ एयर बिटवीन रिफ्रैक्टरी ब्रिक, दिस इज़ रिफ्रैक्टरी ब्रिक, दिस इज़ रिफ्रैक्टरी ब्रिक एंड दिस इज़ स्टील प्लेट, इसलिए पता चला। और रिस्पेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटीज़, सो अब क्या करेंगे, अब वी विल कंटिन्यू। सो पहला हम लोग क्या लिखेंगे, थिकनेस ऑफ रिफ्रैक्टरी ब्रिक, यहाँ पर ही लिखता हूँ, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होएगा। LA इज इक्वल टू 0.2 मीटर, L C इज इक्वल टू 0.006 मीटर एंड LD इज इक्वल टू 0.1 मीटर, and change in temperature of maximum to minimum means 1150 minus 40, आप बोलो कितना आएगा, 1110 डिग्री सेल्सियस हुआ। अब अगला, सो क्या था, 4 स्लैब था, ये LA था, ये X है, ये LC था, ये LD था, ये टेम्परेचर था कितना था टेम्परेचर 1150 और ये 40। सो अब आगे जाते हैं। सो अब आगे क्या आएगा, सो K इज इक्वल टू कितना दिया है, देखते K इज इक्वल टू 1.52, K ये 45, ये 45 किसका है, थर्मल कंडक्टिविटीज ऑफ 3 लेयर्स आर फ्रॉम, ओके दिस इज KC एंड 0.318 watt per meter degree Celsius. So KB is equal to KD is equal to 0.138 watt per meter degree Celsius, KB is equal to KD 0.138 watt per meter degree Celsius, और इसका 45 डेटा में दिया है, आई हैव नॉट मेंशन्ड इन क्वेश्चन। सो Ka इज इक्वल टू 1.52 watt per meter degree Celsius, KB इज इक्वल टू KD इज इक्वल टू 0.138 और KC इक्वल टू 45 watt per meter degree Celsius, और हीट क्या दिया है 400 watt per meter square। सो पहला फॉर्मूला Q इज इक्वल टू Q बाई A इज इक्वल टू डेल्टा T अपॉन समेशन ऑफ L बाई K, मतलब सब इसको ऐड करने का। सो क्या आया, ये तो 1110 है, माइनस किया ना हम लोग ने, LA अपॉन K प्लस LB अपॉन KB प्लस LC अपॉन KC प्लस LD अपॉन KD। सो Q दिया है 400 इज इक्वल टू 1110 अपॉन LA अपॉन, सबको सब्स्टिट्यूट करो। सो 0.2 अपॉन 0.152 1.52 प्लस LB क्या है X, तो X को XP mm में रहेगा, मीटर में कन्वर्ट करो, X बाई 1000 अपॉन KB 0.138 प्लस LC अपॉन
AC, तो 0.006 अपॉन 45 प्लस 0.1 अपॉन 0.138 और फिर यू हैव टू सब्सटीट्यूट एंड गेट द फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर क्या आएगा देखें, तो इसको वापस फर्दर सॉल्व किया तो 1110 अपॉन 0.1316 प्लस 0.072x प्लस, ये सब मैंने पहले ही कैलकुलेट किया है, तो आप ऐसा मत समझना कि ये वैल्यूज़ जैसे ठोक रहा है क्या, प्लस 0.7246, तो ये सब हुआ। सो ये ऐड करो, फिर x मिल जाएगा आपको मल्टीप्लाई डिवाइड होने के बाद। तो x का वैल्यू कुछ 2.775 आता है। सो x मिल गया x इज इक्वल टू 2.775, एक मिनट, नो सॉरी, x इज़ नॉट इक्वल टू 2.775, x इज इक्वल टू 0.2665 मीटर। दिस इज़ द राइट आंसर। आप क्रॉस वेरीफाई करो, सी ये इक्वेशन है आपका, ये दिस इज़ द इक्वेशन। और बाद में क्या पूछा है कि हीट ढूंढो, हीट ऑफ क्या, हीट ऑफ आउटर सरफेस। ये स्टील प्लेट है, स्टील प्लेट। सो इसका हीट कैसे ढूंढोगे आप, क्यू दिया है, ये टेम्परेचर TSP माइनस ये टेम्परेचर 40 अपॉन LD अपॉन KD। सो आपको मिल जाएगा, ये 400 है, LD तो आपको पता ही है 0.1 मीटर, KD भी पता है, KD 0.138। सो मिल गया। एंड सी दिस ऑल थर्मल कंडक्टिविटी इज़ वेरी गिवन कि किसका क्या है, मतलब स्टील प्लेट का ये है। तो आई हैव नॉट टेक एज्यूम्ड, मैंने क्वेश्चन यहाँ पर पूरा लिखा नहीं है, डेटा में दिया हुआ था। सो दिस इज़ द वे यू हैव टू सॉल्व। एंड नेक्स्ट सम इज दिस विच आई विल टेक इन नेक्स्ट सेशन, बट उससे ये सेशन में मैं एक न्यूमेरिकल लूँगा, सिंपल वन है। सो दैट इज़ बेस्ड ऑन, मतलब अगर KA dt बाई dx और dt बाई dx इज इक्वल टू माइनस Q बाई K, मतलब कभी टेम्परेचर ग्रेडियंट पूछा या हीट फ्लो पूछा तो ये दो फॉर्मूला यूज़ करो। और आगे फिर और ऐसे सम्स आएंगे जिसमें कॉन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र भी होएगा, मतलब T1 माइनस T4 अपॉन 1 अपॉन H प्लस L अपॉन K प्लस ऐसे, तो वो सब हम बाद में देखेंगे। सो इन नेक्स्ट वीडियो एक न्यूमेरिकल होगा और फिर फर्दर थियरी से मैं कंटिन्यू करूँगा। सो टिल देन पीस आउट, स्टे सेफ, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू गाइस।